Okay, let's start. Let's not wait for others. Uh, so some of you have, I said, got to know through WhatsApp that you have the doubts in De Moivre's theorem and so on. So what we do, uh, we will take a revision on Friday's lecture. So जो फ्राइडे का लेक्चर है उसके 10 मिनट पहले ज्वाइन करो जिनको भी डाउट्स है डी मोवियस थ्योरम और जो भी मतलब असाइनमेंट दिया है उस पर. तो फ्राइडे के लेक्चर को 9:50 को ज्वाइन करो. देन वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दैट डी मोवियस थ्योरम, हाउ टू फाइंड द एंगल एंड सो ऑन. फिर उसके बाद हम लोग 10 बजे से अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे. सो जो लोग को डाउट है वो पहले ज्वाइन करो उस लेक्चर में, 9:50 को ज्वाइन करो. ओके, so that is about the doubt solving. So today we will start our session. So as I pointed out in this Laplace transform chapter, जो आपका थर्ड यूनिट का हाफ पार्ट है, उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. You have 7 formulas and you have 9 properties. उनको कंबाइन करके आपको इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं. So what I am saying you, remember these 7 formulas. Laplace transform of 1 is 1 by s. Laplace transform of t raised to n is equal to n factorial upon s raised to n plus 1. Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. Laplace transform of cos at is equal to s upon s square plus a square. Laplace transform of sin at is equal to a upon s square plus a square. Laplace transform of cos h at is equal to s upon s square minus a square, and Laplace transform of sin h at is equal to a upon s square minus a square. Okay. Then we have seen two properties of Laplace transform. The first property was linearity property. Linearity property क्या बोलता है? You can take out the constant outside of the Laplace transform. That is the simple meaning of linearity property. Then we have seen two examples based on linearity property. We have also seen what is happened when you multiply by t raised to n. So when you multiply by t raised to n, you have to multiply the equation by minus 1 raised to n, and you have to take nth order derivative of whatever is the answer of Laplace transform of f of t. So f of t का अगर Laplace transform f of s है, तो अगर आपने वो f of t को t raised to n से मल्टीप्लाई किया तो क्या करना पड़ेगा, उतने टाइम n टाइम्स आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपके फंक्शन का. वी हैव सीन अपना जो 2 टाइम्स जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 2 टाइम्स में ही अपना u by v रूल 2 बार अप्लाई करना पड़ता है डेरिवेटिव का. दैट वी हैव सीन. नाउ we come to the our today's topic, that is change of scale property. तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा यूज नहीं होता है. सिर्फ आप इसको मतलब देखो कि कैसे वो प्रूव होता है कि इफ योर एफ ऑफ टी बिकम्स एफ ऑफ ए टी, मतलब आपको किसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन पता है. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस 4 रेज टू 5. देन आप कैसे करोगे, यू विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. ओके, so when you have t ka multiple, then you can apply this property. What does it say? Laplace transform of f of a t is nothing but 1 upon a f of s upon a. So let us prove this property. Again, कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिक डेफिनेशन यूज करना है. व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म? लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन क्या है, e raised to minus st f of a t dt. okay, so apply the basic definition. in general we have f of t, but यहाँ पे क्या है, f of a times t. तो अगर f of a times t है तो आप क्या करोगे, इस जो a times t है उसको क्या लोगे, कोई अनदर वेरिएबल लेंगे. इसको क्या बोलते हैं हम लोग जब ऐसा पुट करते हैं तो, what does we call it as? इंटीग्रेशन का कौन सा रूल अप्लाई करके वो करते हैं हम लोग, वी यूज इंटीग्रेशन रूल नोन एज चेंज ऑफ वेरिएबल. सो जब चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं तो क्या करना है आपको, पहले वी पुट u इज इक्वल टू a टाइम्स t.
so that if we differentiate both the side, t is a variable, u is a variable, a is a constant, so du will be a times dt. okay, differentiate both the side, जो भी आप कर रहे हो उसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को, तो आपको du का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके टर्म में है, dt के टर्म में है. यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन इनटू du के टर्म में. देन आपका t कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, t changes from t is equal to 0 to t is equal to infinity, so that we have to check what is the value of u when t is equal to 0 and what is the value of u when t is equal to infinity. So we get t is equal to 0, अगर पुट करो इसमें t is equal to 0, u का वैल्यू क्या मिलेगा, a times 0, a times 0 मतलब u is also equal to 0. When t tends to infinity, what is the u value, a times infinity, a times infinity क्या होगा, a times infinity will be equal to infinity, provided this value of a is greater than 0. if value of a अगर निगेटिव है तो क्या होगा, u tends to माइनस इंफिनिटी, क्योंकि निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा इसीलिए वो क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा. बट यहाँ पे पॉजिटिव है a, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, u टेंड्स टू इंफिनिटी. नाउ द लिमिट विल रिमेन सेम. देन u का लिमिट क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी. कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिट चेंज होता है, वो हम लोग बाद में आज की प्रॉब्लम में देखेंगे. कई कई जगह पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो सब्सटीट्यूशन किया है लिमिट्स, वो सब्सटीट्यूशन के हिसाब से आपका लिमिट डिसाइड होता है. सो लिमिट 0 टू इंफिनिटी, अगर आपने e रेज टू एस टी है, t के जगह पे क्या रहेंगे आप, आपका u का वैल्यू क्या है, a टाइम्स t, तो t का वैल्यू क्या होगा, t इज इक्वल टू u अपॉन a, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, t के जगह पे u अपॉन वे. एवरीवन प्लीज चेक दैट यू कैन जूम इन, आप आपके स्क्रीन पे जूम इन कर सकते हो. यस या ओके. देन f ऑफ u, एंड यहाँ पे क्या होगा, du मतलब क्या, a टाइम्स dt है, तो dt का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, du अपॉन a. सेम यहाँ पे भी सेम करना है, dt इज इक्वल टू du अपॉन a. ओके, just let me admit these people. yeah okay, so वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया du अपॉन a, देन व्हाट विल हैपन, आई विल क्लियर आउट, बहुत सारा मैंने यहाँ पे ये किया है. या सो ये इंटीग्रल बना. अभी ये इंटीग्रल में हमारा जो 1/a कंपोनेंट है वो बाहर निकालो इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो t पे u पे डिपेंड नहीं करता है. किसका माइक चालू है, शर्म नहीं आई तुझे, ऐसे गंदी गंदी गालियों वाले गाने गा के. सर आमिर, मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है. ओके. कितने बड़े आवाज में आपका पढ़ाई होता है, okay, let's come back to our topic. 1 upon a we can take it outside, so that it is u के जगह पे अपने के पास क्या आएगा, we combine it with s, so that e raised to minus s upon a into u f of u du. it is of the form, आपका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्या था आपका डेफिनेशन, e raised to minus st f of t dt. तो हम लोग जो भी इंटीग्रेशन का वेरिएबल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल. डमी वेरिएबल इसके लिए बोलते हैं कि सेम इंटीग्रेशन आई कैन राइट इट लाइक दिस, 0 टू इंफिनिटी
e raised to minus sk f of k dk. सो k क्या है यहाँ पे? डमी वेरिएबल है. सिमिलरली यहाँ पे ओके. सो आपको क्या है? e रेज टू माइनस एस के एफ ऑफ के डी के. सो आपका वेरिएबल भी चेंज हुआ तो इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम ही रहेगा. दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के. सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ये अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेरा s के जगह पे क्या है? s बाय a है, इसीलिए f ऑफ क्या होगा? s अपॉन a. सो अंडरस्टूड दिस प्रोसेस. दिस इज इन द सिमिलैरिटी विद द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में माइनस एस टी यूज होता है. यहाँ पे क्या है? माइनस एस यू है, बट माइनस एस यू नहीं है, s के डिवाइड में क्या है? a भी है, तो इसीलिए वो क्या होगा? f ऑफ s अपॉन a. सो दिस इज हाउ वी प्रूव दैट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. अभी ये प्रॉपर्टी कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं है? सो वी विल टेक द एग्जांपल. ओके. अगर आपको पता लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी क्या है? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. व्हाई इट इज सो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए टी? साइन ए टी का फॉर्मूला क्या है? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. हाँ. तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, इसीलिए क्या होगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. ओके. सो व्हाट इज यू हैव टू डू? व्हाट इज यू आर गेटिंग द फॉर्मूला 1 अपॉन a f of s by a. Laplace transform of f of a t is equal to 1 upon a f of s by a. So जहाँ पे भी s है 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, और जहाँ पे भी s है यहाँ पे, तो वहां पे क्या लेना है आपको? जहां पे s है वहां पे s बाय a लेना है. सो 1 बाय a से मल्टीप्लाई किया, और जहां पे s था वहां पे क्या लिया? s बाय a लिया. सिंप्लीफाई दिस. आपको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब डिवाइड में क्या आ जाएगा? पूरे डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर आ जाएगा विच विल कन्वर्ट इनटू द न्यूमरेटर. सो इट विल बी ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो 1a and this 1 power will get cancel out. So you will get that a upon s square plus a square, which is the formula for Laplace transform of f of 18 sin of 18. सो आपने क्या किया? यू हैव द साइन 80 का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता था, उससे आपने क्या किया? साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया. सो इज दिस क्लियर हाउ दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज? हम जनरली ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं. सो इवन इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन नॉट यूज दिस एक्चुअली. ओके. मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी बिना यूज किए ही चल जाता है. ठीक है. क्योंकि जनरली हमारा जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी हमने ई रेज टू 80, कॉस 80, साइन 80, कॉस एच 80 ऐसे ही डिफाइन किया है. सो अगर हमने साइन टी के लिए सिर्फ डिफाइन किया होता तो ये फॉर्मूले से हम लोग ये वैल्यू लिखते, बट ऑलरेडी हमने वैसे ही प्रॉपर्टी यूज की है, इसलिए इसका कुछ यूज नहीं है इतना. सो जस्ट आप रिमेंबर करो इसका. फॉर एग्जाम्पल 9t स्क्वायर. सेम 9t स्क्वायर इज नथिंग बट 3t स्क्वायर. सो अगेन आपने अप्लाई किया. टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1. वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू, विल गॉट दैट 2 अपॉन s क्यूब. 2 अपॉन s क्यूब के लिए क्या करना है आपको? लैप्लास ट्रांसफॉर्म का चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है? 1/3 आउटसाइड, एंड इंस्टेड ऑफ s यू हैव टू टेक s/3. ओके. आपको क्या मिला फाइनल वैल्यू? अगर सब्सटीट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया तो 18 अपॉन s क्यूब. But same you can use this Laplace transform like this, na?
मैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्यों नहीं रेफर करता, इसी वजह से। बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी व्हाट यू कैन राइट दिस एज 9 टाइम्स Laplace transform of t square. So 9 times, what is the Laplace transform of t square? 2 upon s cube, which is equal to 18 by s cube. So ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही प्रॉपर्टी से आंसर मिलेगा। यहाँ पे मैंने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से भी आंसर निकाला है, और यहाँ पे जो दूसरा वाला मेथड है वो क्या है, दिस इज बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से भी आंसर मिलेगा और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से भी आंसर मिलेगा। सो उसमें एक्चुअली क्या करने की जरूरत ही नहीं है आपको कुछ करने की। ओके, सेम आंसर आता है। 18 upon s cube is over here, 18 upon s cube is over. So there are multiple ways to find the Laplace transform of a function. Now next two theorems are important. वो आपको हर जगह यूज होंगे। That is called as first shifting theorem and second shifting theorem. आपको ये थ्योरम इसलिए ध्यान में रखने हैं क्योंकि सेम आपने जो किया है ना अभी तक, वो सेम इनवर्स ट्रांसफॉर्म में रिपीट होने वाला है। इनवर्स ट्रांसफॉर्म में सेम थ्योरम्स रिपीट होने वाले हैं, इसीलिए आपको ये जो थ्योरम्स है वो अच्छे से करने चाहिए यहीं पे। व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सेज? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सेज कि if you have the Laplace transform of f of t is equal to f of s, then for any scalar, scalar कैसा होना चाहिए, this condition should be satisfied, s का वैल्यू a से ग्रेटर होना चाहिए। then अगर आपने आपके फंक्शन को e रेज टू s at से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, f of s minus a। okay, so what does this theorem says? If you multiply your function by e raised to at, then whatever is answer of Laplace transform of f of at, you have to substitute s के जगह पे क्या substitute करना है, s minus a। okay, easy theorem है, proof भी easy है। okay, so what is the proof of this? Laplace transform of e raised to at f of t, उसका डेफिनेशन से क्या वैल्यू होगा? By the definition of Laplace transform, what do you get? You have to just substitute, instead of f of t, you have to substitute e raised to at into f of t. Okay, बाकी सब as it is रहेगा। Since base is same, you can combine the power of e raised to power. So base same है तो आप power को combine करोगे, फिर t कॉमन लोगे तो क्या होगा, माइनस एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। बट एस के जगह पे क्या है, एस माइनस ए है, इसीलिए आपका फंक्शन में क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, एस के जगह पे एफ ऑफ एस था पहले, अभी एफ ऑफ एस के जगह पे क्या होगा, एफ ऑफ एस माइनस। ओके, सो दिस इज हाउ यू प्रूव दैट first shifting theorem. What does first shifting theorem says? कि if you multiply your transformation by e raised to at, you will get Laplace transform का जो भी वैल्यू रहेगा उसमें s के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, s minus a. Okay, so let us apply this property. Find the Laplace transform of e raised to 3t sin 4t. इसमें अगर फाइंड करना है तो आपको पहले क्या निकालना होगा, you have to just find the Laplace transform of sin 4t। सिर्फ sin 4t का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालो। सो पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म sin 4t कैसे आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, sin 80 का फॉर्मूला बताओ, एनीवन? a upon s square plus a square. हाँ, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर, a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 4 है, वो सब्स्टिट्यूट करो, 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so that वैल्यू क्या होगा, 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16। ओके, व्हाट डज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सेज? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सेज दैट कि e रेज टू 80 sin 40 अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, s के जगह पे s विल चेंज टू s माइनस a। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बताओ,
ए का वैल्यू है 3, राइट, दिस इज योर ए का वैल्यू 3 है, तो आपको एस के जगह पे फॉर्मूला क्या आया, 4/s³ तो एस के जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, s-3, ओके। सो s-3 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या वैल्यू आएगा, आप देखो, सिंप्लीफाई करो, व्हाट इज a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो s-3 का स्क्वायर किया, वी गॉट दिस वैल्यू s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। आप ऐड करो कांस्टेंट टर्म्स, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू एज 4/s² minus 6s plus 25. So this is very simple property. If you have multiplication with e raised to at, you have to substitute f of s minus a. जो भी आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू आएगा ओरिजिनल फंक्शन का, उसमें s को किससे रिप्लेस करना है, s माइनस a से रिप्लेस करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हर एक प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देख रहे हैं, एक एक एग्जांपल। इन द लास्ट वैल्यू, मतलब ये जब आपके प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगे, हम मिक्स एग्जांपल देखेंगे। मिक्स एग्जांपल मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है आपको, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करके अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट वी विल सी one एग्जांपल ईच और 2 एग्जांपल्स, एंड देन फाइनली वी विल अप्लाई द all the मतलब examples at the same time. Fifth property of Laplace transform. Fifth property, what is it says? Second shifting theorem. Okay. So what does it mean? Second shifting theorem क्या है? First shifting क्या था? e raised to at से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? Laplace transform चेंज होके s माइनस a में लेना है। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है कि वो जो t s माइनस ए था, यहाँ पे t माइनस ए, ओके। सो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s एंड देयर एग्जिस्ट सम स्केलर a ग्रेटर देन 0 एंड अनदर फंक्शन g ऑफ t सच दैट g ऑफ t कैसे डिफाइन है, f ऑफ t माइनस a इफ t इज ग्रेटर देन a एंड इट इज 0 इफ t इज लेस देन a, then the Laplace transform of g of t is nothing but e raised to minus as f of s. ये जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। इसीलिए अभी सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखेंगे क्या है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट डज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t मींस, एनीवन? ये डेफिनेशन आपको याद ही करनी है, इसका कोई ये नहीं है, you have to remember this kind of definition. Laplace transform of f of t is equal to e raised to minus st f of t dt, बट यहाँ पे क्या है, Laplace transform g of t का निकालना है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया, g of t dt। बट g of t का डेफिनेशन कैसा है, केसेस में है, t ग्रेटर देन a एंड t इज लेस देन और इक्वल टू a। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इंटरवल को भी वैसे डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमने ऑलरेडी किया है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको केसेस में है, if it is in the cases, what do? You will divide this interval from 0 to a and then divide it from a to infinity, okay। 0 to a में Laplace transform का वैल्यू क्या है, this g of t will become 0, so ये फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, चला जाएगा, we will remaining only with the second integral, therefore which is equal to a to infinity e raised to minus st. What is the Laplace transform of g of t in the case t is greater than a, f of t minus a. अभी यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो Laplace ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ t होता है, बट यहाँ पे क्या है, t माइनस a है, सो t माइनस a, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, पुट u इज इक्वल टू t माइनस a, देन डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा, विच इज सेम एज du इज इक्वल टू dt, ठीक है। अभी u का ये जो इंटीग्रेशन था t वेरिएबल में था, t का लिमिट क्या था, t गोज फ्रॉम t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो जब t इज इक्वल टू a होगा, पुट u में t का वैल्यू a डालो, क्या होगा, u इज इक्वल टू 0, t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो u में क्या होगा, u ऑल्सो गोज टू इंफिनिटी,
Okay, infinity minus any number. Infinity minus 1 is infinity. Infinity minus 2 is infinity. Therefore, infinity minus a क्या होगा? Infinity ही होगा. Okay. So सब्स्टिट्यूट करो आपके इंटीग्रेशन में वैल्यू. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू, टी के जगह पे क्या है आपका? u इज इक्वल टू टी माइनस ए. सो टी के जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं. t इज इक्वल टू u प्लस ए. ठीक है. सो यहाँ पे जो t था e रेस टू माइनस एस टी, यहाँ पे क्या होगा? t इज इक्वल टू u प्लस ए. एफ ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस ए क्या है? u है. सो एफ ऑफ u होगा डी टी सेम एज डी यू. सो एफ ऑफ यू इंटू डी यू. ये आ गया. अभी लिमिट्स क्या डालने? लोअर लिमिट क्या था? टी का a था. बट t इज इक्वल टू ए मीन्स क्या है? u इज इक्वल टू 0. देयरफॉर लोअर लिमिट क्या होगा इस इंटीग्रल का? 0 हो गया. अपर लिमिट क्या था? t टेंड्स टू इंफिनिटी. सो अपर लिमिट क्या होगा? अपर लिमिट इज इंफिनिटी. देन व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट e रेस टू माइनस एस यू. यहाँ पे एक कंपोनेंट भूल गया मैं. e रेस टू माइनस ए यू ए एस. ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे दोनों पावर अप्लाई होगा. सो आई विल राइट दिस स्टेप. ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं जो ये लिख रहा हूँ, दिस विल बिकम e रेस टू माइनस एस यू इंटू e रेस टू माइनस ए एस. ओके. जब मैं स्प्लिट करूँगा बेस से मैं, पावर इज इन द एडिशन, सो यू विल गेट e रेस टू माइनस एस यू e रेस टू माइनस ए एस. सो e रेस टू माइनस ए एस यहाँ पे भी लिखना है, बट यहाँ पे बाहर आ जाएगा क्योंकि वो u पे डिपेंड नहीं करता है. whereas e raised to minus su depends on u, so you cannot take e raised to minus su outside of the integration, but you can take e raised to minus as outside the integration. You will get the integration from 0 to infinity e raised to minus su fu du. Okay. Now what is this? This derivative is nothing but e raised to minus as f of s. So when you have function like this, then you will get this integration to be equal to, if your function is like this, g of t is equal to f of t minus a for t greater than a, and it is equal to 0 if t less than a, then you have Laplace transform is like this. Okay. So let us take the example. ये क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं आपको. फाइंड द Laplace transform of f of t is equal to क्या है? केसेस दिया है. 0. 0 कब है? t लेस देन पाई. तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है? व्हाट डज दिस फंक्शन मीन? यहाँ पे ये पाई जो है वो क्या, किसका वैल्यू लेगा? a का वैल्यू लेगा. ये t माइनस ए बन जाएगा फिर. सो आपका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन आपका बनेगा साइन स्क्वायर टी. ओके. आपका ये जो है वो साइन स्क्वायर टी बन जाएगा. जी ऑफ टी इज इक्वल टू, तो पहले इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है और फिर e रेस टू माइनस एस इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म, जो भी साइन स्क्वायर टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा वो लिखना है. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसलिए वी विल फर्स्ट फाइंड व्हाट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर टी माइनस ए है. तो आपका एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर टी. तो साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला आपको पता नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ साइन टी का फॉर्मूला पता है. तो क्या करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. We know that what is the trigonometric formulas? Sin square t is equal to 1 minus cos 2t upon 2. Cos square t is equal to 1 plus cos 2t अपॉन 2. तो ये दो फॉर्मूले आपने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े होंगे. जो हाफ एंगल फॉर्मूले का यही फॉर्मूला है. साइन स्क्वायर टी में क्या होता है? 1 माइनस कॉस टी आता है. कॉस स्क्वायर टी में क्या होता है? 1 प्लस कॉस टी आता है. तो जब भी आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके उसको कॉस या साइन के फंक्शन में लाना है. ओके.
तो यहाँ पे कॉस एंड साइन के फंक्शन में लाया तो क्या होगा मेरा, साइन स्क्वायर टी के जगह पे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2. Then apply the linearity property. What does linearity property says? It is 1 by 2 common outside of the Laplace transform. Laplace transform of 1 minus 1 by 2 common Laplace transform of cos 2t. अभी आप मुझे बताओ क्या होगा इसका वैल्यू. What is Laplace transform for 1? Anyone? 1 upon s. 1 upon s. What is Laplace transform of cos 2t? s upon s square plus a square. Square plus 4. हाँ, तो ये यहाँ पे क्या है, a वैल्यू क्या है 2 है, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, राइट. तो वही अपने को लिखना है. तो 1 अपॉन 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या है 1 बाय एस. 1 अपॉन 2 व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 2t, आपने बोला s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. सो इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई क्या होगा 1 अपॉन 2s माइनस s अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 4. So by the second shifting property क्या बोलता है, you have to just multiply with e raised to minus as, right. So Laplace transform of f of at क्या होगा, e raised to minus as. आपका जो भी वैल्यू आया f of s का वो वैल्यू आपको लिखना है. That's it. Okay. So this is easy to understand. First shifting theorem क्या बोलता है, s के जगह पे s माइनस ए करना है. कब करना है, जब e रेस टू 80 से मल्टीप्लाई होता है. ओके, क्योंकि वहां पे s माइनस ए का कंपोनेंट आ जाता है. सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आपका दूसरा कोई फंक्शन है जो f ऑफ t माइनस ए के फॉर्म में है, देन आपको क्या करना है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है. ओके, इफ यू हैव फंक्शन ऑफ द टाइप f ऑफ t माइनस ए, यू अप्लाई द सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इफ यू हैव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू 80, you will apply the first shifting property. So by first, you can also write here second shifting theorem. By using second shifting theorem, we can write whatever is the transformation value you got, you have to multiply with e raised to minus as. Okay. Next, division by t. This is called as property is known as division by t. अभी हमने क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन देखा था. अभी हम क्या देख रहे हैं, डिवीजन बाय टी. अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन किया था तो क्या होगा हुआ था, एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन विद टी रेस टू एन क्या हुआ था, एनीवन. Let us revise this. Multiplication with t raised to n क्या था प्रॉपर्टी, this is multiplication with t raised to n property. When you multiply by t raised to n, you will take nth order derivative, right? Yes. Yes. So now please close your mic. Okay. So डिवीजन जैसे हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन विथ टी होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा. अगर आप डिवाइड करते हो तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. सो एफ ऑफ टी अपॉन टी होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के टाइम आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है. इंटीग्रेशन के टाइम आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है. सो व्हेन यू हैव मल्टीप्लिकेशन विद टी, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव. व्हेन यू हैव डिवीजन बाय टी, यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन. ओके, सो ये क्यों होता है, अगेन आपका एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. ओके, सो ये जो है उसको क्या करेंगे, बोथ साइड फ्रॉम एस टू इंफिनिटी. ओके,
बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया s टू इंफिनिटी, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, s टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। सो इसीलिए दोनों तरफ आपने क्या किया, इंटीग्रेशन लिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझाता हूँ। ओके, सो ये जो इंटीग्रेशन है वो जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एक्चुअली आपको 4th यूनिट का पार्ट है। अरे यार ये हैंग क्यों हो गया, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, जस्ट वेट। ओके, so suppose this is my x axis. I know my drawing is not perfect. This is my y axis. ये जनरली होता है ना आपका, बट अभी आपके पास क्या है, आपके पास एक p एक्सिस है, एक s एक्सिस है। सो मैं यहाँ पे x का एक्सिस को क्या लूंगा, x नहीं लूंगा, बल्कि आई विल टेक दिस इज एज p एक्सिस, और y के एक्सिस को क्या लूंगा, दिस इज एज x एक्सिस। सो आई विल रिमूव दिस x and y, you will get the axis value is t and s। अभी ये आप कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, t का लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी। ओके, सो t कहां से स्टार्ट होगा, कंसीडर t इज इक्वल टू 0 मीन्स s एक्सिस, राइट। आपका क्या है, x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 इज s एक्सिस। सो t इज इक्वल टू 0 इज s एक्सिस। सो यहाँ पे मैं एक्सिस का इक्वेशन लिखता हूँ, t इज इक्वल टू 0, और t टेंड्स टू इंफिनिटी किस साइड होगा, t टेंड्स टू इंफिनिटी इस साइड होगा। मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेके मैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे कोई वैल्यू होगा s, ठीक है, s एक्सिस पे ये वैल्यू होगा। सो t कहाँ से चेंज होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटीग्रेशन है, इसका जो भी वैल्यू है, मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का वैल्यू है। सो व्हेन आई एडेड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दिस s is equal t is equal s is equal to s to s is equal to infinity, I will get this region। ओके, सो ये जो रीजन बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, पूरा कवर करेगा, राइट। सो यहाँ पे भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ भी इंफिनिटी को जा रहा है। व्हेन आई चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, रिमेंबर दिस कंसेप्ट, आपका रीजन जो है वही रहेगा। रीजन क्या आपका, फ्रॉम s टू इंफिनिटी एंड फ्रॉम t टू इंफिनिटी। सो ये जो अपर पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर है, इस लाइन के आगे का जो स्क्वायर है वो आपका रीजन बन जाएगा। बट अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं, तो ऑर्डर चेंज करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे थे, फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर रहे थे फ्रॉम s इज इक्वल टू s टू s इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन पे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, t का वैल्यू क्या होगा, सो पहले t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी किया था। अभी s क्या करेंगे, s इज इक्वल टू, यहाँ पे t का वैल्यू के टर्म में लिखेंगे। सो s क्या होगा, s गोज फ्रॉम यस,
s grows from 0 to s is equal to infinity and then t का वैल्यू 0 to infinity लेंगे. So पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया था, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड किया था फ्रॉम s to infinity. यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वर्टिकल लाइन पे करें. वर्टिकल लाइन t is equal to 0 to t is equal to infinity and then sorry वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हाँ, s is equal to s is equal to infinity. This is the vertical line and then this vertical line from added from t is equal to 0 to t is equal to infinity. So this is of the दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आता है. जैसे आप इमेजिन करो, आपका अगर आपके क्लास में जो बच्चे बैठ रहे थे वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं पहले क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट दिस, कितने बेंचेस है क्लास में, रोज में उन लोगों को अलग अलग करें. सो आई कैन काउंट दिस एलिमेंट. हाउ आई विल काउंट द एलिमेंट, आई कैन आइदर डिवाइड इट इनटू कॉलम. एक कॉलम में कितने बेंचेस है, एक कॉलम में अगर 4 बेंचेस है और ऐसे 3 कॉलम्स है तो आई विल राइट 4 into 3, 4 + 4 + 4. सो आई एम डूइंग वर्टिकल कैलकुलेशन. वर्टिकल लाइन में इक्वेशन बना रहा हूँ और वो वर्टिकल लाइन्स ऐड करते जा रहा हूँ. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है. आई विल गेट द आंसर एज 12. अगर दूसरा तरीका क्या है, आई विल काउंट द रोज, कितने रोज है, ठीक है, हर एक रो में 3 है, 3 + 3 + 3 + 3. दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा 12. वही हम लोग कंसेप्ट इंटीग्रेशन में भी अप्लाई करें. पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंटीग्रेशन लेंगे और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन s is equal to 0 to s is equal to infinity का ऐड करेंगे, या फिर पहले वर्टिकल लाइन पे इंटीग्रेशन लेंगे और बाद में वो जो वर्टिकल लाइन है वो ऐड करते जाएंगे. दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है, राइट. सो इसको बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो आपको ये डिटेल में आएगा कंसेप्ट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन यूनिट 4, ठीक है. जब डबल इंटीग्रेशन हम डिटेल में सीखेंगे तो आपको ये पूरा रिवीजन होगा. सो dt इंटू डी एस है, वो क्या बन जाएगा, ds इंटू dt. ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है कैलकुलेट करने में इजी है, ठीक है. सो अब पहले क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू s डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू s, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू s हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर द वेरिएबल इन विच विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग इंटीग्रेट करें. सो ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है s is equal to s to s is equal to infinity कहाँ पे अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन लिमिट इज ds. सो f of t, फंक्शन t वेरिएबल में है तो फंक्शन को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर निकाल सकते हैं. सो फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर निकाला. यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले वाले इंटीग्रेशन में ना हम e raised to minus st को बाहर निकाल सकते थे क्योंकि वो t में डिपेंड करता है, ना ft को बाहर निकाल सकते थे क्योंकि t पे डिपेंड करता है. बट यहाँ पे जब हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर किया तो चेंज ऑफ ऑर्डर करने का फायदा क्या हुआ, हम लोग f of t बाहर निकाल सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाई वी डू द चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. पहले वाले इंटीग्रेशन में पहले t का वैल्यू करना था बट t के इसमें कोई वैल्यू बाहर नहीं निकलता था, इसीलिए हमने पहले क्या किया, s का इंटीग्रेशन किया. तो s का इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, t का, माइनस t इज अ कांस्टेंट बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s. सो वेरिएबल क्या है, s, और कांस्टेंट क्या है, t. अगर हम लोग dt के हिसाब से करते थे तो वेरिएबल क्या होता था, t, और कांस्टेंट क्या होता था, s. इसीलिए वैल्यू क्या रहेगा, e raised to minus st अपॉन माइनस t. बट आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, आपने हमेशा देखा है e raised to minus st का जब भी लिमिट आता है तो इन्फिनिटी वाला लिमिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो वो स्टेप्स यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, 0 माइनस इंटीग्रेशन e raised to minus st अपॉन t, जब हम लोग s में s सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, ठीक है. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस और ये जो t है वो f of t क्या है, इसमें ऐड हो जाएगा. ओके ओके. सो ये क्या बन जाएगा, ये अगर t जो है मैं
f के साथ कंबाइन करूंगा तो f ऑफ t अपॉन t हो जाएगा. दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t अपॉन t. So Laplace transform of f of t upon t is nothing but integration from s to infinity ds. Okay. ये Laplace transform कब use होता है? Okay. This Laplace transform is useful like this. When you have to calculate Laplace transform of sin h 2t upon t. So division by t clearly है division by t. So आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले ओरिजिनल फंक्शन का Laplace ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा. That means we have to first calculate the Laplace transform of, किसका Laplace transform निकालेंगे? cos h2 की का Laplace transform, sorry, you should calculate the Laplace transform of sin h2t. So ये गलत है. पहले हम लोग क्या निकालेंगे? Laplace transform of sin h2t and then we will apply the division by t formula. So sin h2t क्या है? 2 upon s square minus 4. ये क्यों आया? What is the formula underlying? Anyone? क्या है formula? A upon s square minus a square. A upon s square minus a square. So वो formula apply किया. Then what is division by t rule says? You have to take the integration from s to infinity ds. You have to take the integration from s to infinity. So apply the integration. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? We will use the formula of e raised. What is integration by parts? Let us take this integration into the what is your integration? S to infinity 2 by s square minus 4, right? What does the integration by parts means? This is same as integration 2 को बाहर निकालो 1 upon s minus 2 into s plus 2 ds. So integration by parts means we have to take this 1 upon s minus 2 into s plus 2 as a by s minus 2 plus b by s plus 2. ओके. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? s माइनस 2 इंटू एस प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 1 इंटू एस प्लस 2 बचेगा न्यूमरेटर में इंटू ए प्लस s माइनस 2 इंटू क्या? हेलो, ब्लर ब्लर दिख रहा है एकदम. आप रिफ्रेश करो आपका विंडो, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है मुझे. लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन इफ दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. इज दिस क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ओके, लेट मी कंटिन्यू देन. अभी 2 मिनट ही बचा है मेरे पास. सो s प्लस 2 टाइम्स a प्लस s माइनस 2 टाइम्स b. सो पहले क्या करो, आप पुट करो s इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन. सो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a. ओके, s इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो a का वैल्यू क्या रहेगा? a का वैल्यू रहेगा 1/4. ठीक है. पुट s इज इक्वल टू माइनस 2. s इज इक्वल टू माइनस 2 तो क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स a माइनस 4 टाइम्स b. सो ये क्या बन जाएगा?
1 अपॉन माइनस 1/4 इज इक्वल टू बी। सो आप अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स 1/4 टाइम्स 1 अपॉन s माइनस 2 माइनस 1/4 टाइम्स 1 अपॉन s प्लस 2। सो आपने क्या किया, ये जो वैल्यू था ये वैल्यू को आपने बाय पार्ट्स में डिवाइड करके a अपॉन एस माइनस 2 b अपॉन एस प्लस 2 के फॉर्म में लिखा। सो 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 टाइम्स दिस प्लस माइनस 1/2 टाइम्स दिस। ओके, सो यही हम लोग को करना है। सो फाइनल वैल्यू क्या रहेगा, 1/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के बाद 1/2 टाइम्स 1 अपॉन एस माइनस 2 माइनस 1/2 टाइम्स 1 अपॉन एस प्लस 2 ds. So this is how the final value is looking like. आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स a अपॉन फर्स्ट पार्ट प्लस b अपॉन सेकेंड पार्ट, और a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया वैसे। ठीक है, ये रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी। व्हाट इज 1 अपॉन एस माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूले के लिए किया हमने। s माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ s माइनस 2। 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन इज log ऑफ s, सो इट इज 1 log ऑफ s प्लस 2। सो अप्लाई द लिमिट्स। लिमिट अप्लाई करने के बाद फर्स्ट लिमिट क्या होगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में होगा। सो आप अगर s को कॉमन निकालोगे न्यूमरेटर से, आई विल डू इट ओवर हियर ओनली। इफ यू डू ओवर हियर, फर्स्ट लिमिट क्या होगा, log ऑफ, मैं वो 1/2 नहीं लिख रहा हूँ, s अगर कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2/s, एंड इन डिनोमिनेटर s कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2/s, राइट। अभी s विल गेट कैंसल आउट, इफ यू सब्सटीट्यूट द इंफिनिटी यू विल गेट log ऑफ 1, राइट। व्हेन यू पुट द लिमिट you will get log of 1, and log of 1 is always 0. log of 1 is always 0, and s अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा। s में s का ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है तो क्या रहेगा, एज इट इज रह जाएगा, log of s माइनस 2 अपॉन s प्लस 2। अगर माइनस लॉगरिथम होता है तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ओके, व्हाई इट इज रिवर्सिंग, बिकॉज यू कैन अप्लाई द इनवर्स इन द numerator. Why it is inversing, you can write this as log of s minus 2 upon s plus 2 इनवर्स, क्योंकि लॉगरिथम में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द इनवर्स। सो इनवर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, s प्लस 2 अपॉन s माइनस 2। सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin h4t upon t. This is how we will find the answer. So we will see this example, revise this example in the next lecture. Okay. So this completes all the 6 properties of the Laplace transform. अभी आपके 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, what is convolution theorem, Laplace transform of derivative and Laplace transform of integration. ये 3 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, we will stop here. Let me just download the attendance. Okay, so we will again I am repeating the same. On the Friday lecture जिनको भी वो डी मोवियस थ्योरम